Hello everyone, welcome to session. So in this session, we're going to do modulus part 2. Before you watch this video, make sure you have watched the previous session that was on modulus part 1. In modulus part 1, we have seen the definition of modulus, we have seen the graphical representation of modulus, we have done basic equations involving modulus, and we have also solved the equations involving inequality in modulus. Fine. So make sure you watch that video before watching this video. Okay, so today we're gonna do these type of equations, how to solve like little complex equations on modulus. And I have also tried to cover different varieties that can be in these type of equations, like different varieties. What I mean, like instead of plus there can be minus sign, instead of coefficient as 1 there can be 2 or 3. So I have tried to cover all the varieties, and for solving all these type of equations, all different varieties on this, will be using just one general method. Right? Because if you see in the books or like you watch other videos, you'll find that if instead of plus there come minus, approach will change. Right? Instead of coefficient there one comes there some coefficient, your approach will change. But we'll not do this thing. We'll just learn one method, one general method, and that is also very simplest method. That is not like complex method, one general method. And if you learn this better, if you practice enough, you'll be able to solve questions very fast. Okay, as compared to any other approach. Okay, so let's get started. How we'll solve? So we have to find the value of x for this equation. So let's see what this method and how we'll approach. And also one thing, I hope you guys have already you may know this method. मैं बता दूं तुम्हें different क्या क्या method होते हैं ना, ऐसा तुम्हें लगे कि ये वाला method नहीं पता हमें. So let me tell you this method. एक method मैं just तुम्हें hint दूंगा, I will not explain. We will discuss this method. ठीक है? This is the best method. This is the what I find. This is the better way to solve. एक method तुमने ये सुना होगा कि क्या करते हैं यहाँ पर नंबर लाइन पर ऐसे ऐसे लिखते हैं और ऐसे इसको सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर एक फ्रेंड है, यहाँ पर एक फ्रेंड है, यहाँ पर एक फ्रेंड, एंड दे आर मूविंग, है ना. ऐसे करके सॉल्व करते हैं ना मैक्सिमम मिनिमा और ऐसे वाले इक्वेशन. तो दिस इज द वन मेथड. यू कैन रेड दिस मेथड इन द बुक ऑल्सो. तक्षशिला की बुक में आई थिंक दिया होगा, वहां से भी पढ़ सकते हो. बट लेट्स कम टू आवर मेथड. मैं जस्ट तुम्हें बता दिया कि ये भी मेथड है, बट वी विल फोकस ऑन दिस मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग टू पहला स्टेप ये मेथड का है कि तुम्हें पहले इसमें फाइंड करना है व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स. ठीक है. क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है किसी ग्राफ का? क्रिटिकल पॉइंट्स, आई होप ये तुम्हें याद होगा, मैंने इनइक्वालिटी वाले पार्ट में बताया है ना. क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? जहां पर या फिर वो क्रिटिकल पॉइंट्स या फिर इस इक्वेशन इसको जीरो बना रहे हो इक्वेशन को, है ना, इसका सॉल्यूशन हो, या फिर वो क्रिटिकल पॉइंट पर शार्प चेंजेस आए कर्व पर. क्रिटिकल पॉइंट्स पर जैसे ग्राफ तुम्हारा ऐसा जा रहा हो और ये शार्प चेंजेस आ जाए, है ना. तो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट जहां पर ग्राफ नॉट डिफाइंड हो या फिर वो इक्वेशन का सॉल्यूशन, दोज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स. ठीक है. और जो मॉडुलस होता है ये शार्प चेंजेस लेके आता है कर्व में. ठीक है. मॉडुलस जो होता है शार्प चेंजेस लेके आता है कर्व में तुम्हारे. तो देयर बाय यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे? x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो पहला क्रिटिकल पॉइंट है तुम्हारा x इक्वल टू -3. समझ में आ रहा होगा, यू क्या क्रिटिकल पॉइंट से मेरा मतलब है और ये क्या चीज़ है, कैसे निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट. दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा x इक्वल टू 1. तीसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा? x इक्वल टू. तो दीज आर द 3 क्रिटिकल पॉइंट. फाइन. फर्स्ट स्टेप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है. सेकेंड स्टेप है इन क्रिटिकल पॉइंट्स को ड्रॉ करना ऑन नंबर लाइन. तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आए थे -3. नंबर लाइन पे नंबर्स के ऑर्डर में करोगे, है ना, ऐसे नहीं कि 3 को वहां लिख दिया, 7 को यहाँ. नंबर लाइन पर नंबर ऑर्डर में. तो ये तो सिंपल सी बात है. अब देखो इनके रिस्पेक्टिव इसकी क्या वैल्यू है, इस इक्वेशन की क्या वैल्यू है. अगर -3 पुट करोगे तो इसकी क्या वैल्यू आएगी? ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा. तो डेट इज 14. ठीक है. -3 पे ये इक्वेशन की वैल्यू 14 आएगी. 1 पे कितनी आएगी? ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा. अगेन कैलकुलेशन चेक करते रहना. अगर कैलकुलेशन गलत हो जाएगी पूरा ये गलत हो जाएगा. ठीक है. बट अप्रोच सही रहेगी. आंसर भले गलत आ जाए बट अप्रोच सही रहेगी. तो अगर कैलकुलेशन कहीं गलत हो तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. 7 पे क्या आएगा? 7 3 10 6 16. ठीक है. तो हमने क्या किया, नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ किए और उनके रिस्पेक्ट में
उनके रिस्पेक्ट में हमने उनकी वैल्यूज इक्वेशन की लिख ली। ठीक है, अब तुम्हें कुछ चीजें चेक करनी है। यहां पर देखो ये इंक्रीज हो रहा है ना, 10 से 16 जा रहा है, इधर ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच एक और चीज होगी, जैसे ये क्रिटिकल पॉइंट है, इनके बीच अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज ही करेगा, अगर डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज ही करेगा। जो इस इक्वेशन की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, इनके बीच में कहीं ऐसा नहीं होगा कि पहले इंक्रीज कर गई फिर डिक्रीज कर गई, दिस विल नॉट हैपन। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगा। देखो इधर इंक्रीज हो रहा तो ये यहां तक इंक्रीज ही होगा, ये इंक्रीज हो रहा तो इंक्रीज ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि 11 12 आया फिर 10 आ गया, दिस विल नॉट हैपन। ठीक है, तो इससे देखो क्या पता चला, अगर ये सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है तो इसके बीच क्या कहीं 20 आ सकता है, यहाँ 20 आ सकता है, नहीं आ सकता, 20 आ सकता नहीं आ सकता। फाइन, दिस थिंग इज क्लियर, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो यहां पर तुम्हारा इसके बीच में कहीं 20 नहीं आ सकता है। अच्छा, कॉर्नर्स पे हमें चेक करना होगा एक बार कि ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, कॉर्नर्स पे हमें एक बार चेक करना होगा। तो कॉर्नर्स पे कैसे चेक करोगे, यहां पर तुम कोई भी वैल्यू ले लो रैंडम, 7 से जो बड़ी हो, 8 ले लेते हैं। ठीक है, 7 से जो बड़ी हो कोई भी एक वैल्यू ले लो रैंडम और चेक करते हैं। वी हैव टेकन 8, तो 8 पे देखो कितनी वैल्यू आ रही है, 8 पे वैल्यू आ रही है 19, 8 पे वैल्यू कितनी आ रही है 19। इसका मतलब क्या हुआ, इधर ये इंक्रीज कर रहा है, 16 से 19 आया तो इधर ये इंक्रीज ही करता रहेगा। ठीक है, अब ये कहीं इसके बाद डिक्रीज नहीं होगा, तो एक वैल्यू चेक करके हमें इसके बाद भी कर्व का वेरिएशन पता चल जाएगा, कर्व कैसे बिहेव कर रहा है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें इधर पता चल गया कि 16 इधर बढ़ता जा रहा है। इधर चेक कर लेते हैं, -3 से कम वैल्यू क्या आएगी, -4 ले लेते हैं। कोई भी वैल्यू ले सकते हो, -10, इससे बस छोटी होनी चाहिए, इससे बस बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले आनी चाहिए और इसके बाद आनी चाहिए, डेट डजेंट मैटर कितनी बड़ी कितनी छोटी है, जो तुम्हें कैलकुलेशन में आसान लगे वो वैल्यू लेनी, सिंपल। तो -4 पे देखो कितना वैल्यू आ रहा है, -4 पे दिस बिकम्स 1, 5 एंड 11, तो हाउ मच, दिस इज 17। तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, दिस इज फाइन। ज़्यादातर केस में यही ट्रेंड फॉलो होता है, बट इट इज़ लाइक मेक श्योर यू चेक, चेक जरूर करना एक्सट्रीम पे एक वैल्यू लेके। फाइन, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इससे एक चीज़ समझ में आई यार, 20 यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ कहीं इस बीच में कहीं सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है, हमारी ये वैल्यूज ना, एक्स वाली वैल्यू सॉल्यूशन है, एक्स वाली वैल्यू सॉल्यूशन है, इसके रिस्पेक्ट में एक्स वाली वैल्यूज जो नीचे वाली वैल्यूज है ये सॉल्यूशन है। तो हमें ये पता चल गया कि इसके बीच में कहीं सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर कहीं सॉल्यूशन, यहाँ पर देखो 10 से 16 के बीच में तो 20 आता नहीं है, 10 से 14 के बीच में नहीं आता, इधर इंक्रीज कर रहा है, 16 के बाद 20 आएगा, बिल्कुल आएगा, 14 के बाद इंक्रीज कर रहा है, इधर आएगा, तो दो साइड सॉल्यूशन है। तो सपोज इसके पूछता कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो आंसर यहाँ से सिंपल हो जाता है, कितना, 2, है ना, दो ही तो सॉल्यूशन है, एक इधर वैल्यू आएगी एक इधर वैल्यू आएगी। इज इट राइट, इज इट राइट, है ना, सही है, एक इधर वैल्यू एक इधर, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हुए इस इक्वेशन के, 2 हुए। अब फाइंड करते हो सॉल्यूशन क्या होगा। अब वो सॉल्यूशन निकालने का तरीका थोड़ा केयरफुली देखना। यहाँ पर देखो एक्स का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 1 है ना, 1 1, सबका साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, सिंपल, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट साइन राइट नाउ। ठीक है, ये जनरल मेथड, अगर साइन नेगेटिव होता तो नेगेटिव कर देंगे जिसका, सबका यहाँ पर भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको +1। अब नेक्स्ट स्टेप, इसको चाहो तो रहने दो वरना हटा सकते हैं। ठीक है, चेक तो कर लिया हमने। अब देखो 16 है, हमें चाहिए इसकी वैल्यू, यहाँ पर जो x आएगा दैट विल द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस x की वैल्यू चाहिए। इस x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 16 में कितना बढ़ाना है, 4 4। ठीक है, 4। अब यहाँ पर देखना साइन ऑटोमेटिक आएगा, यहाँ पर लाइक प्लस माइनस, अगर प्लस ले लो तो अगर माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा ऑटोमेटिक, बट यहाँ पर तो प्लस ही होना है। क्या करना है, प्लस, हमें कितना बढ़ाना है, 4, सॉरी जस्ट अ मिनट, 4 वहाँ नहीं होगा, 4 यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो 7 होगा, 7 में ऐड करेंगे ना, 7 के बाद की वैल्यू ना, तो 7 प्लस यहाँ से ना, यहाँ में इतना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 4 4 डिवाइडेड बाय, डिवाइड देखो किससे करेंगे,
सी दिस थिंग केयरफुली। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसको इस साइड लाएंगे +1, ये भी यहाँ पर आएगा +1 और ये भी यहाँ पर आएगा +1। तो +1 +1 +1, 7 + 4/3 that is 25/3. This is the value of x for which this equation will be the solution, or the value of this equation becomes 20. ये तुम चेक कर सकते हो। सो दिस इज द वन सॉल्यूशन। आई होप इस समझ में आया, सिंपल सा स्टेप है। अब इधर देखो क्या होगा, x इक्वल्स टू ये वाला x निकालते हैं ना, जहां पे 20 हो रहा होगा, तो -3 प्लस, अब यहाँ पर प्लस माइनस देखना ऑटोमेटिक आ जाएगा, प्लस ले लेते हैं, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा जो आना होगा, जो आंसर होगा। x है ना। अब यहाँ पर हमें कितना चाहिए, 6 चाहिए, +6 है ना, +6 का जंप है, +6। अब देखो क्या है, अभी ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, एक्स एक्सेस पे राइट डायरेक्शन पॉजिटिव होता है ना, राइट डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, लेफ्ट डायरेक्शन निगेटिव था। अब ये लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, अब इसको यहाँ पर आना है, इसको यहाँ पर आना है, इसको यहाँ पर आना है, तो ऑल दिस विल बी -1 -1, राइट। तो x इक्वल टू -3 प्लस ये हो जाएगा -3, तो दिस विल बिकम -2 है ना, माइनस, मैंने बोला अपने आप साइन आ जाएगा, साइन का वरी नहीं करना तुम्हें। तो दिस इज -5, तो x इक्वल टू -5। तो कितने हमारे दो सॉल्यूशन आ गए, एक x इक्वल टू -5, एक x इक्वल टू 25/3। दीज आर द टू सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। I hope this method is clear. We'll do more question to get clarity. Let's do this question. Second question करते हैं। Again, I think values लगभग सेम है, just ये चीज चेंज है, ठीक है। ओके, तो अगेन स्टेप सेम है, क्रिटिकल पॉइंट्स तो वही है तुम्हारे, है ना। नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, -3 1 7, रिस्पेक्टिव वैल्यूज क्या थी, 14 10 16, 14 10, और हमें पता इधर भी इंक्रीज है, इधर भी इंक्रीज है, चेक कर लिया ऑलरेडी, सो वी डोंट नीड टू वरी। अब देखो चाहिए हमें 12, तो 16 के बाद 12 आता है, नहीं आता, तो इधर सॉल्यूशन नहीं है। 14 के बाद 12 नहीं, इधर सॉल्यूशन नहीं। 10 और 14 के बीच में 12 आता है, यस। 10 और 16 के बीच 12 आता है, यस। अगेन अगर इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा तो कितने, 2 हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके 2 हो जाएंगे। अब सॉल्व करते हैं 12 के लिए, सिंपल सेम मेथड यूज करेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर x और यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। तो देखो तुम यहाँ पर अगेन 1 1 है ना, +1 +1 +1 कोफिशिएंट। अब चाहो तुम इस साइड से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर इस साइड से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। कैसे, देखो पहले 14 के साइड से करते हैं, है ना। तो 14 के साइड से करेंगे तो कैसे करेंगे, x इक्वल टू -3, -3 इधर से कर रहे हैं ना, इस साइड से कर रहे हैं, तो -3 बेस बन जाएगा, -3 प्लस, अब यहाँ पर सॉल्यूशन है, तो देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं ये दोनों, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो सबको ऐसे लिखो। कितना चाहिए, -2 चाहिए, यहाँ पर कितना चाहिए, 14 से पीछे जाओगे तो -2 चाहिए, तो -2। अब ये आ रहा है पॉजिटिव साइड, तो दिस इज +1। ये दोनों नेगेटिव साइन के साथ है ना, रिवर्स में आ रहे हैं, लेफ्ट साइड आ रहे हैं, तो दिस गेट्स -3 एंड दिस बिकम माइनस माइनस प्लस, है ना, ऊपर नीचे प्लस हो जाएगा, दैट इज -2। तो x इक्वल टू -2 इज, मतलब एक सॉल्यूशन x इक्वल टू -2 आ गया। अब ये मैं तुम्हें इस साइड से भी लिख के दिखा दूँ, 10 के साइड से, 10 के साइड से देखो कैसे लिखेंगे, 10 के साइड से लिखेंगे +2 चाहिए हमें ना, +2, 10 के साइड से में चाहिए कितने पे, 1 पे, है ना, 1 पे, 1 बेस है तुम्हारा क्योंकि इधर से कर रहे हैं, +2 चाहिए हमें। ये भी साइन के साथ लिखना है ना, प्लस या माइनस जो भी साइन के साथ है सबको साइन के साथ ही लिखना है। यहाँ पर देखो -2 था तो मैंने -2 लिखा। अगेन सब सेम डायरेक्शन में, ये दो पॉजिटिव आ रहे हैं, दो नेगेटिव आ रहे हैं, एक पॉजिटिव आ रहा है, तो एक पॉजिटिव आ रहा है, दो नेगेटिव, एक पॉजिटिव दो नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा ये 1 और -2, दैट इज -1, -1 आ गया ये। एक मिनट,
यहाँ पर सही किया था। ओ, देखो हाँ, यहाँ पर मिस्टेक था ना, ही अलग थोड़ी आ जाएगा, आंसर तो सेम आएगा है ना। तो दिस इज -1, -1 आ रहा है ना, x इक्वल टू -1। यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स चेक करते रहना, कैलकुलेशन मिस्टेक्स। ये पकड़ में आ गई हमने क्योंकि क्रॉस वेरीफाई कर लिया, वरना मैं x इक्वल टू -2 ही सॉल्यूशन बता देता, है ना। तो दिस इज द राइट सॉल्यूशन। चाहो तो चेक भी कर सकते हैं, -1 पे देखो, 2 2 -1 8 12 आ रहा है, ठीक। फाइन, तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो आई होप दोनों तरीके से समझ में आ गया। इधर से अगर 10 को बेस मान के करोगे या 14 को बेस के मान कर करोगे तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कैसे निकालेंगे, क्या निकालते हैं। एक्स इक्वल्स टू 10 साइड से निकाल लेते हैं ना, 10 साइड से निकालते हैं 1, दूसरा वाला तुम क्रॉस कर 16 के साइड से तुम वेरीफाई करना करके, प्लस एंड कितना चाहिए, 2 चाहिए, +2 चाहिए, +2। अब इसमें 2 पॉजिटिव आ रहे हैं, 1 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, तो दिस इज 3 3 आ रहा है। 3 रख के एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 6 2 4, करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। वेरी सिंपल मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। दिस इज योर होमवर्क, है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेट मी नो योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। अब ये देखते हैं जिनमें लाइक एक्स के कोफिशिएंट्स भी हैं, एक्स के देखो यहाँ पर कोफिशिएंट भी है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन अप्रोच सेम रहने वाला है। अब पता है क्या चेंज आ जाएगा, देयर विल बी ओनली वन चेंज। जो यहाँ पर मैं 1 1 लिखा है ना, ये 2 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी वही 2 2 आ जाएगा, 2 3 जो भी होगा कोफिशिएंट वो आ जाएगा, विद साइन आ जाएगा जब नेगेटिव वाले करेंगे। तो मेथड हमारा चेंज नहीं होने वाला है, विल बी यूजिंग द सेम मेथड। तो लेट्स जस्ट सॉल्व। तो पहले तो क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। नहीं सीधी नहीं बन रही है, दिस इज करेक्ट। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तुम्हारे यहाँ पर -2, है ना। अगेन सेम क्रिटिकल पॉइंट तो वही रहेगा, लाइक 2 से तो कोई ऐसे, अगर इसको जो पूरा 0 करोगे तो x इक्वल टू 3 आएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स तुम्हारे हैं -2 -2 2 और 3, -2 2 एंड 3, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। इरिस्पेक्टिव लाइक इनके रिस्पेक्ट में वैल्यू भी फाइंड कर लो। So if I put -2 here, so this becomes 10. Again, now this be little careful और वैल्यू सारे चेक करते रहना, मैं सही कर रहा हूँ। 5 20 that is 30. I hope this is correct. अगर ये सही नहीं हो तो एंड सॉल्यूशन गलत आ जाएगा, बट अप्रोच सही रहेगा, ठीक है। फोकस ऑन अप्रोच अगर ये गलत हो जाए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि कैलकुलेशन यहाँ पर गलत था। एक बार फिर से वेरीफाई करता हूँ। -2 5 10 0 हो जाएगा, -2 4 5 20 +30, ठीक है। 2 पे देखो, 2 पे ये 1 दैट इज 2 4 12 0 दैट इज 14। 3 पे 0 15 5 20। ओके, तो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव वैल्यू। अब एक और चीज हमें क्या करना है, यहाँ पर इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। इसका कोफिशिएंट है +2, इसका है +3 एंड इसका है प्लस, नहीं ये मिस्टेक होती है, ये मिस्टेक होती है एग्जाम में, देखो कॉमन सी मिस्टेक। हमें इसके रिस्पेक्ट में लिखना है, और मैं क्या लिख रहा था, मैं लाइन से लिखता जा रहा था ना। -2 वाला ये है, इसका होगा +3, और 2 वाला ये है तो इसका होगा 5, और 3 वाला पॉइंट कौन सा, ये, तो इसका होगा 2। अब सही है, ओके। तो अब यहाँ पर तो देखो ये डिक्रीज कर रहा है ना, 30 से डिक्रीज कर, ये इधर इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके लिए लिखते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं 4, इसके लिए ले लेते हैं -1। तो 4 पे देखो कितना आ रहा है, 4 पे ये हो जाएगा 2 एंड 18 एंड 10, तो डेट इज 30। तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज कर रहा है इस साइड को, राइट साइड को। ये कर्व जो भी इसका बनेगा वो इंक्रीज करेगा, जो बिहेवियर होगा उसका इंक्रीज होगा। -1 पे देखते हैं, तो 8 3 15 26, इधर को डिक्रीज कर रहा है ना। चेक कर लेते हैं एक बार, पक्का डिक्रीज कर रहा है। -1 डेट इज 4 8 आ जाएगा, -1 डेट इज 1 3 आ जाएगा, -1 डेट इज 3 15, तो 18 26, फाइन। तो इधर को डिक्रीज कर रहा है,
लेफ्ट साइड पे डिक्रीज कर रहा है, राइट साइड पे इंक्रीज कर रहा है। तो देखते हैं 40 कहाँ पर हमें मिलेगा, वेयर विल गेट द 40, यहाँ कहीं 40 आएगा, इधर इंक्रीज कर रहा है 30, बट 30 के बाद डिक्रीज कर जा रहा है, तो इस साइड तो 40 नहीं मिलेगा, इधर इंक्रीज कर रहा है और इधर इंक्रीज करता जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन तो एक ही है ना, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ओके जस्ट अ मिनट, माय बैड, देखो मैं वही मिस्टेक कर दी मैंने, -1 थोड़ी आएगा इसके बाद, -1 तो इसके बीच में आएगा, सॉरी, -1 तो यहाँ पर आएगा ना, है ना, तो यहाँ पर 26 है ना, 26 के बीच की वैल्यू, सॉरी, -3 लेते हैं, लेट्स टेक द -3, -3, -3 पे 12 एंड 3 25, हाउ मच इज इट, 18, 43, 43, 43 ना 50, नॉट, मैं इसको 15 कंसिडर कर रहा हूँ, दिस इज 15 दैट इज 40, जो बेसिकली हमें चाहिए ये वही आ गया, 40 आ गया। ठीक है, एक बार फिर से चेक करें, -3 दैट इज 12, 3 -3 एंड दैट इज 5, 25, 25 एंड 15 दैट इज 40। ठीक है, तो इधर भी इंक्रीज करो, तो ये तो हमें सॉल्यूशन ही मिल गया, ये तो हमें सॉल्यूशन ही मिल गया 40। तो इसके पहली बात, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने, दो हैं, एक इधर को हो गया, एक इधर को हो गया, एक तो हमें वैल्यू मिल गया, दूसरा भी निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता, सिंपल 2 आंसर हो जाएगा। अब अच्छा एक और चीज करते हैं, ये बाई चांस आ गया बट इसको लेट्स डिराइव भी करते, फिगर आउट भी करते हैं कैसे आएगा। तो x इक्वल्स टू -2 पे +10 चाहिए हमें, +10 चाहिए। अब देखो कैसे, सारे नेगेटिव डायरेक्शन में, सारे नेगेटिव डायरेक्शन में, सारे नेगेटिव डायरेक्शन विद साइन, -3 -5 -2 दैट इज -2 एंड दिस इज ऑल्सो 10, सो दैट इज -1 दैट इज -3, -3 आ रहा है, दिस इज अवर सॉल्यूशन। क्लियर, बहुत ही सिंपल स्टेप है सॉल्व करने के। फाइन, अब इस साइड के सॉल्यूशन को देखते हैं, और लेट्स सी दिस साइड ऑफ सॉल्यूशन। तो x इक्वल्स टू, बेस हमने 3 लिया, 3 प्लस एंड कितना 20 है ना, +20 चाहिए हमें, +20 चाहिए, हमें चाहिए +20, +20, और ये सारे पॉजिटिव साइड आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ कहीं पर जो भी x हमें निकालना है ना, जो भी हमें x निकालना है, तो डेट इज +3 +5 +2 दैट इज हाउ मच, 3, 10 हो जाएगा अगेन, 2 दैट इज 5, तो x इक्वल टू 5, दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया x इक्वल टू -3 एंड दूसरा 5। चेक कर ले 5 पर, 3 पर तो आ ही रहा है, 5 पर चेक कर लेते हैं, 5 पर कितना आ रहा है, 4, 21, 15, 25, 15, 40। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी देयर, इस टाइप से इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। एक नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगेन स्टेप सेम है, स्टेप सेम है, नंबर लाइन पे पहले ड्रॉ करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स है -3, 1 और 7, दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में एक्स के कोफिशिएंट्स क्या है वो लिख लेते हैं। -3 वाले का कोफिशिएंट +1 है, 1 वाले का कोफिशिएंट -1 है, 7 वाले का कोफिशिएंट +1। इनके रिस्पेक्ट में वैल्यूज क्या है, अगर तुम 3 रखोगे, -3 रखोगे, नॉट 3, -3 रखोगे तो ये हो जाएगा -3 दैट इज 6 हो जाएगा, दिस विल बिकम 6। और अगर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0, 6 और 10 हो जाएगा। अगर 7 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 4। हमें 8 निकालना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, एक्स के सॉल्यूशन फाइंड करना। तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है ना। अब देखो इधर इंक्रीजिंग है, इधर इंक्रीजिंग है तो 8 यहाँ पर आएगा बीच में, 6 और 10 के बीच 8 आएगा। इधर डिक्रीजिंग है, इधर भी 8 आएगा। कॉर्नर्स चेक कर लेते हैं, है ना, एक्सट्रीम्स चेक कर लेते हैं। 8 पर देखो कितना वैल्यू आएगा। अगेन कैलकुलेशन थोड़ा कॉशियस रहना, मैं जो करता हूँ 5,
इधर इंक्रीज कर रहा है तो इधर भी 8 आएगा। इधर चेक करते हैं, -3, इस बार सही करूंगा, -4, -4, -4, 7, इधर भी इंक्रीज कर रहा है तो 8 इधर भी आएगा। कितने सॉल्यूशन आ गए इसके? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 4 आ गए ना, हर जगह पे 8 है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके 4 आ गए। अब एक एक करके सॉल्यूशन निकालना, एक एक करके। आई होप मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की, 4 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन इधर का निकालते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू -3, हमें चाहिए कितना? +2। +2 साइन यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऐड करना है जो करना है। +2, अब ये इस साइड आ रहे हैं, सारे अपने लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो सारे निगेटिव हो जाएंगे। तो ये -1 हो गया। अब ये नेगेटिव है ऑलरेडी तो -1 प्लस हो जाएगा ना, ऐसे लिख दूँ। अब लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो सारे माइनस ही होंगे। तो व्हाट इट बिकम्स, दिस बिकम्स -3। समझ में आ गया ना? लाइक जस्ट क्या फर्क पड़ेगा इस साइन से, सिर्फ इतना फर्क आएगा अप्रोच पे। अप्रोच सेम है, अप्रोच पे कोई फर्क ही नहीं है, सेम। जस्ट साइन के साथ लिखना तो ये -1 के साथ आ जाएगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो नेगेटिव ऑलरेडी हो जाएगा। तो दिस विल बिकम, दिस गेट कैंसल्ड, दिस विल बिकम -2, तो दैट इज -5। एक सॉल्यूशन आ रहा है x इक्वल टू -5, चेक कर लेते हैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, वेरीफाई हो जाएगा। 2, 6, 12, ठीक है, 8 आ रहा है। तो दिस इज द वन सॉल्यूशन। अब ये वाला सॉल्यूशन निकालते हैं। x इक्वल टू -3 बेस मान के कर लेते हैं, ठीक है। -3 प्लस 6 है ना, तो +2 करना है, +2। यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो 1 पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, -1 अपने निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो -1 और -1 प्लस हो जाएगा। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये माइनस डायरेक्शन में आएगा तो ये कितना हो जाएगा? -3, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, है ना। तो कितना? +2, -1, -1 आ रहा है, एक आ गया तो वह -1 सोल्यूशन। -1 पे भी चेक कर लेते हैं। 2, 2, 8, ठीक। यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर 10 को भी इस मान के कर लेते हैं। x इक्वल टू -1, -1 नहीं, 1 है, 1 है ना, ये वाली वैल्यू 1, और प्लस कितना करना है? -8 करना है, -2 करना है, 8 लाना है ना, 10 से 8 लाना है तो -2 करना है। अब यहाँ पर देखो ये दो तो पॉजिटिव आ रहे हैं तो इनका साइन चेंज नहीं हुआ, एक नेगेटिव आ रहा है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 1 माइनस माइनस कैंसिल, +2, 3 आ जाएगा। ये सॉल्यूशन 3। लास्ट सॉल्यूशन x इक्वल टू 7 प्लस 4 हमें लाना है, 4 बेस है हमारा ना, तो 4 प्लस करना है, तो +4। अब सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में तो सारे अपने साइन के साथ आ जाएंगे, तो दैट इज 11। दीज आर द 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन है, -5, -1, 3 और 11। दीज आर द सॉल्यूशन। आई होप नाउ दिस अप्रोच इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा। जो भी हो तुम्हें, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, let me know your answer in the comment section. I see like many of you watch the videos but didn't write the answers, so I don't know, get to know like you understand this concept or not. So let me know in the comment section your answers. Sum of all values of x that satisfy, ठीक है, एक ये इनइक्वालिटी का है। चलो इसको कर लेते हैं, ये भी सिंपल ही होगा, इसमें कुछ आई डोंट थिंक कुछ नया है। पहला स्टेप वही है, नंबर लाइन पर ड्रॉ करो। तो इसमें क्या आएगा? 2x प्लस 6 इक्वल टू, हमें बेसिकली करना क्या होता है कि मॉडल, लाइक तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जो मॉडुलस के अंदर पार्ट होता है ना उसको 0 कर देते हैं, सिंपल। तो यहाँ से x इक्वल टू -3 आ जाएगा, और दूसरा क्या? x इक्वल टू 2। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है? मॉडुलस के अंदर के पार्ट को जस्ट इक्वल टू 0 कर देना, और x की वैल्यू जो होगी वो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, इज इट। और कुछ नहीं करना है, रिस्पेक्टिव वैल्यू निकाल लो। तो ये कितना आएगा? -3 ना, तो 5 हो जाएगा, -5। 2 रख लो, ये तो 0 हो गया, 4, 10 हो गया। 12 निकालना है, 12 निकालना है।
अब अगर 12 निकालना है तो इसके यहाँ पर तो देखो ये इंक्रीज हो रहा, तो बीच में -5 और 10 के बीच में तो 12 नहीं आएगा। एक्सट्रीम पे एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। -3 ना -4, तो -4 पे देखो वैल्यू कितना आएगा, 8 2 आ जाएगा। -4 पे 6 आ जाएगा, 6 -2 -4 आ जाएगा। सही है, 2 आ जाएगा है ना, एंड 6 आ जाएगा -4। तो इधर वैल्यू इंक्रीज कर रही है, मतलब 12 इस साइड पे होगा। एक सॉल्यूशन इधर है। 3 पर देखते हैं, 12 1 11, इधर भी इंक्रीज हो रहा है। तो दो सॉल्यूशन है इसके, एक इधर है और एक इधर है, दोनों निकाल लेते हैं। और इसके कोफिशिएंट्स क्या है एक्स के। अगेन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 2 है। -3 वाले का 2 है, पॉजिटिव 2 है, इसका -1। पहले इस साइड का निकालते हैं, दिस लेफ्ट साइड। एक्स इक्वल्स टू, बेस लेते हैं इसको भी बेस ले सकते हो, -4 जो अभी तुमने वैल्यू लिया है ना, दैट डजंट नीड टू वरी। -3, बट लेकिन ज़्यादातर बेस इसको लेना, पता है क्यों? सपोज तुमने यहाँ गलत कैलकुलेशन कर दी हो तो वो मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। अगर सपोज यहाँ से तुमसे गलत कैलकुलेशन हो जाए तो वो चीज़ नहीं होगी, तो इसीलिए मेक श्योर जो दिया है उसी वैल्यू को बेस लेना। -3, अब ये जैसे ये भी तो बोलोगे कि अगर गलत कैलकुलेशन लोगे तो गलत ही हो जाएगा, क्या पता ये वैल्यू बस गलत हो, बट बाई चांस वो कर्व का जो बिहेवियर वो सही हो जाए, बाई चांस, है ना, तो उसके वजह से तो आंसर सही हो सकता है। बट अगर तुम बेस ही ले लोगे तो वैल्यू तो ऑलरेडी गलत हो ही जाएगी। ठीक, कितना लाना है हमें, -5 से 12 पहुंचना है। कितना चाहिए, 17 ना, +17, +17, दोनों नेगेटिव साइड आ रहे हैं, तो -2 और ये -1 -1 +1 हो जाएगा। अब मैं -1 करके नहीं लिख रहा हूँ, आई होप तुम लोगों को पता चल गया। तो दिस इज कितना, -1 है ना, -1, दैट इज -20। एक सॉल्यूशन आ गया -20, इधर का ही एक सॉल्यूशन होगा -20। चेक कर ले -20 पे, -20 पे इज इट, चलो चेक करते हैं। आई डोंट थिंक -20, -3, ओके, 17 15, हाँ ठीक तो है। तो ये कितना आ जाएगा, 17 20, ठीक है। क्या वैल्यू पुट करना, -20 दैट इज 36 आएगा, एंड 22, हाँ ठीक है, 22 कितना, 14 आया, एक मिनट, -20 ना, -20, गलती तो कर रहे हैं, -20 34 आएगा ना, 6 माइनस करेंगे, ठीक, करेक्ट, 22 12 आ जाएगा, सही है। यहाँ पर कर लो, x इक्वल टू कितना, 10 से हमें 12 चाहिए, और बेस 2 है, 2, और चाहिए में +2, दोनों पॉजिटिव साइड आ रहे हैं तो अपने साइन के साथ ही रहेंगे, ये -1 के साथ रहेगा। 2 + 2 4 आ गया, 4 पे आ जाएगा, 4 वैल्यू पुट करके अगर देख लो, 8 14 -2, करेक्ट। सो दीज आर द टू सॉल्यूशंस। अब हमें निकालना है क्या, सम ऑफ द वैल्यूज, जो सॉल्यूशन है उनके सम निकालना है। तो एक सॉल्यूशन आया 4 और एक आया -20, तो -20 + 4 दैट इज -16 इज योर आंसर फॉर दिस गिवन। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है ना, इसमें इनइक्वालिटी लगा देंगे, तो एक ये भी क्वेश्चन करते हैं, अगर इनइक्वालिटी आ जाए इसमें। अगेन अप्रोच सेम रहेगा, क्रिटिकल पॉइंट -3, क्रिटिकल पॉइंट 2, ये दो क्रिटिकल पॉइंट है, दोनों पे वैल्यू लिख लो। -3 15 15 आ जाएगा, 2 10। कैलकुलेशन अगेन चेक करते रहना, कहीं अगर गलत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब यहाँ पर तो देखो ये 15 से, अच्छा हमें निकालना है <12, हमें वो सॉल्यूशंस निकालने हैं जहाँ पर वैल्यू <12 हो। तो यहाँ पर ऐसे डिक्रीज कर रहा है, तो कहीं 12 आएगा, कहीं 12 आएगा, फिर आ जाएगा 11, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, 11 10 दीज आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इस बीच में कुछ सॉल्यूशंस हैं। अब एक्सट्रीम पे जरा वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं,
12 दैट इज 15। तो इधर तो इंक्रीज कर रहा है, इधर तो इंक्रीज कर रहा है, बट स्टिल देयर विल बी वन सॉल्यूशन दैट इज 11। अच्छा ये इंटीजर होना चाहिए, जितने सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं इंटीजर, मतलब यहाँ पर इंटीजर की जरूरत है, क्योंकि वरना तो 10.2 10 पॉइंट अनलिमिटेड सॉल्यूशन हो जाएंगे ना। हियर एट दिस प्लेस वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ एक्स दैट आर इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, तो दिस इज, तो इधर एक सॉल्यूशन होगा, 11 12 तो रिक्वायर्ड नहीं है। इधर देख लेते -4 पे, -4 पे 2 18 दैट इज 20, इधर भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो इधर तो 12 आएगा नहीं, इधर तो 12 से कम वैल्यू आएंगी ही नहीं। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस बचते हैं, एक तो ये 11 वाला सॉल्यूशन है, 11 10 और 11, तीन ही सॉल्यूशन है, तीन सॉल्यूशन आएंगे, इससे ज़्यादा वैल्यूज है ही नहीं, इससे नीचे 12 से वैल्यूज है ही नहीं, हमेशा सारी वैल्यूज 12 से बड़ी है। दीज आर द ओनली थ्री वैल्यूज दैट इज 10 11 12। और यू कैन से दैट द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस लाइक इक्वेशन इज दैट इज 10। इसका अगर मिनिमम पूछा जाएगा तो कितना है, 10 है, 10 से वैल्यू कम हो ही नहीं रही है ना? अगर इसका मिनिमम देखोगे तो 10 है तुम्हारा। ठीक, तो अब निकाल लेते हैं क्या क्या वैल्यूज हैं। तो ये हमें करना है 11, 10 से बेस लेके करते हैं, x इक्वल टू 2 प्लस 11 पे जाने के लिए हमें +1 चाहिए, +1 एंड कोफिशिएंट, अच्छा कोफिशिएंट भी है इसके, -3 का कोफिशिएंट है 2 और 2 का कोफिशिएंट है 3, ये सारे राइट साइड पे आ रहे हैं तो 5 आ जाएगा, तो डेट इज 2.5, 2.5 पे ये 11 हो जाएगा, यहाँ पर 2. नहीं इज इट, एक मिनट, 2.5 तो यार इस साइड आएगा 10, अच्छा माई बैड, मैंने यहाँ वाला निकाल लिया ना, तो ये चलो ये वाला लिख लेते हैं 2.5, क्योंकि मैं दोनों को इधर ले आया। क्या मिस्टेक भी समझ में आया, मैंने क्या किया, यहाँ पर ले आया ना दोनों को पॉजिटिव साइड, एक यहाँ पर अगर निकालेंगे तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो सॉल्यूशन आ गया 2.5, एक सॉल्यूशन 2.5 हो गया, एक सॉल्यूशन 2 हो गया, 10 भी तो उससे कम है, तो यहाँ पर लिखते जाते हैं। तो एक तो आ गया 2, 2.5, तीन सॉल्यूशन निकले ना, 11 10 11, ये तीन सॉल्यूशन है। अब ये वाला 11 निकालते हैं, ये वाला 11 निकालोगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, अब सही आएगा। x इक्वल टू 2 प्लस कितना करना है, यहाँ पर भी 1 ही करना है, सब कुछ सेम है, ये पॉजिटिव साइड आ रहा है तो 2 रहेगा, ये नेगेटिव साइड आ रहा है तो -3 रहेगा, दैट इज 2 - 1 दैट इज 1, 1 आ गया। तो दीज आर द थ्री सॉल्यूशन 1 2 2. Anyone having doubt you can let me know in the comment section. I hope this is clear. तो ये तीन वैल्यूज के लिए x की, इसकी जो लाइक एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 12 से लेस रहेगी। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा इनके देखो क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का भी बहुत आसान तरीका है। इसको तो एक तरीका हम ये देख लेते हैं, एक तो तरीका देखो सिंपल ये हो गया कि जैसे अब तुम ऐसे करोगे नंबर लाइन पर ड्रॉ करके, तो एक दूसरा तरीका क्या होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, ये तो लाइक ये मेथड तुम हर जगह तुम्हें मिल जाएगा, तो इसके पहले क्रिटिकल पॉइंट लिखो। क्रिटिकल पॉइंट्स तुम्हारा है -1 -3 0 और 2। ठीक है, अभी मैंने वही थोड़ा कर्व के बारे में जो बताया कि लाइक कैसे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं ना, जहाँ पर शार्प एजेस होती हैं, शार्प टर्न होता है, वो सब तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, जहाँ पर या फिर ये एक्सप्रेशन को वैल्यू सेटिस्फाई करेगी या फिर नॉट डिफाइंड होगी, दोज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अब इसका, अब जैसे तुमने ये लिख लिया, तो इसका जो मीडियन होगा, है ना, मीडियन होगा, जब तुम लाइक नंबर लाइन पे लिख लोगे इसके क्रिटिकल पॉइंट, तो जो मीडियन होगा वो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देगा, जो भी क्वेश्चन में पूछेगा। अभी एक्सप्रेशन है, इसका ग्राफ पता ही कैसा होगा, तो मतलब इसको ड्रॉ करके देखना, या फिर तुम इसको जस्ट वो जो होता है फुल फॉर्म अल्फा कोई वेबसाइट है आई थिंक, कहीं पर भी तुम इसको अपलोड करके जस्ट इसका कर्व देखना कैसा होगा। मतलब मैं जस्ट इसका कर्व नहीं बना रहा हूँ, मैं जस्ट ऐसे ही तुम्हें कोई कर्व समझा रहा हूँ, कि मैं ऐसे ही तुम्हें कोई कर्व समझा, तो ऐसे करके कुछ कर्व होगा। ठीक है, तो इसका देखो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये देखो सार पेज ही होगा, सार पेज ही होगा, मैक्सिमम मिनिमम जो भी वैल्यू होगा वो सार पेज ही होगा। ठीक है,
अगर ये सार पेज ही है तो इन्हीं में से कोई सॉल्यूशन होगा और जो मिडिल की वैल्यू होगा उसी पर होगा। तो जस्ट यही कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज करके हम इस पे, अगर तुम देखो -1 और 0 इनमें से कोई भी एक नंबर ले लो, वैल्यू उसकी सेम आएगी एंड दैट विल द मिनिमम वैल्यू मोस्ट ऑफ द केसेस। तो दिस मेथड कैन बी ऑल्सो यूज, ये तुम्हें हर जगह मिल जाएगा। इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताना। इसका आंसर क्या है वैसे देखें अगर, तो अगर 0 पुट कर देते हैं तो 2 1 3 दैट इज 6 इज द मिनिमम वैल्यू। ओके, बाकी अपने प्रॉपर मेथड से इसको क्रॉस चेक भी कर लेना। इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन बताना। एंड आई होप ऑल दीज मेथड्स, ऑल दीज क्या एक ही मेथड डिस्कस किया है, दैट इज द क्लियर। एंड सॉल्व मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक, डिफरेंट बुक्स से तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड इफ यू गेट एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k वुड द इक्वेशन हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन? एक सॉल्यूशन निकालना है। अप्रोच सेम है, तो नंबर लाइन पे ड्रॉ कर ले। इसके और भी अप्रोचेस हो सकते हैं बट अभी इसी अप्रोच से देखते हैं। -2 और 1/2, -2 और 1/2, ठीक है। -2 पे इसकी वैल्यू क्या है? -2 पे है 5, हाफ पे क्या है? 5/2, 5/2। अब हमें एक सॉल्यूशन इसका सिर्फ चाहिए, मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन, वो चीज़ हमें निकालनी है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आई होंगी और ये डिक्रीज हुआ होगा। इधर देख लेते हैं क्या हो रहा है। इफ आई पुट 1 पुट करो उसमें तो दैट इज 4, इंक्रीज हो रहा है। तो इधर 2.5 के बाद डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू इंक्रीज करते हुए यहाँ पर देखते हैं। -2 पुट करो, -2 पुट करोगे 5, नहीं -2 ऑलरेडी, -3 पुट करते हैं, -3 7 1 8। इधर भी इंक्रीज कर रहा है, इधर भी इंक्रीज कर रहा है, इधर भी इंक्रीज कर रहा है। तो इधर 5 से ऊपर सारी वैल्यूज आएंगी, इधर 2.5 के ऊपर। तो यहाँ पर तुम्हें कोई वैसी वैल्यू दिख रही है जो रिपीट नहीं कर रही है, कोई ऐसी वैल्यू दिख रही है जो रिपीट नहीं कर रही। ये है, देखो देखो यहाँ पर 2.5 से और 5, इधर तो सारा इंक्रीज करते रहे ना 2.5 के ऊपर, इधर भी सारा 2.5 के ऊपर है। तो 5 तो इधर भी रिपीट कर जाएगा बट 2.5 कहीं पर नहीं आएगा। तो 2.5 इज द राइट आंसर। अगर 2.5 लिख दोगे के की वैल्यू तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, दैट इज हाफ, दैट इज 0.5। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। सिर्फ पॉइंट इस पे ये वैल्यू आएगी। ओके, तो लास्ट में ये कुछ क्वेश्चन हैं जो तुम रट लो, इनके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। यू डोंट नीड टू सॉल्व, यू जस्ट सॉल्व यूजिंग रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। इसके मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, तुम्हें बुक में क्वेश्चन मिल जाएंगे, जस्ट ये फॉर्मूलाज याद रखना और खुद से क्वेश्चन लिख के अपने आप देखो क्या ये चीज़ सही हो रही है। अगर ये क्वेश्चन दी हुई है mod x प्लस mod y इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस विल बी 4। अगर ये 3 दिया है तो नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन विल बी 4n² प्लस 2। अगर ये ऐसे दिया है नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन विल बी this one 8n/3। ये तीनों याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट इस फॉर्मूला बेस पे कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब तुम चाहो तो सॉल्व करके अपना देख सकते हो बट लाइक सॉल्व ये फॉर्मूलाज याद रखो, यू विल बी डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। क्वेश्चंस बुक में होंगे वहां से कर लेना। एंड इफ यू गेट एनी डाउट यू कैन लेट मी नो। अब इस पर कोई क्वेश्चन बना के फायदा नहीं है, मैं अननेसेसरी लाइक ऐसे कुछ क्वेश्चन लिखूं और फिर किसी फॉर्मूले से सॉल्यूशन कराऊं तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन तुम खुद से लिख के सॉल्व कर सकते। ओके, so that's it for this session. I hope you guys have learned two new concepts, and don't forget to like this video and subscribe to this channel. Let's see you in the next session.